Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is changes in consumers equilibrium. There are three main factors due to which consumers equilibrium changes. Number one is price. Due to change in price, if price of any good X or Y changes, that causes to shift in the consumers equilibrium. Number two is changes in consumers income. If consumers income changes, that also lead to shift in the consumers equilibrium. And number three is change in price of substitute goods. So we explain these concepts in detail. Number one is price effect. Any change in consumers equilibrium due to change in price is known as price effect. कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कोई भी ऐसी चेंज जो कंज्यूमर्स की किसी भी कमोडिटी एक्स या वाई की प्राइस की चेंज होने से आता है तो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो ऐसा चेंज जो प्राइस की वजह से होता है उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। तो इसके डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में देखें कि IC1 जो है बजट लाइन AB को E1 पे टेंजेंट कर रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर्स का इनिशियल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। Suppose price of X falls down, then it will cause to shift the budget line from AB to AC, and due to this shift, consumers equilibrium also changes from E1 to E2, and this is known as price effect. Similarly, if price goes on decreasing, then budget line will also goes on shifting outwards from AB to AC, AD, and so on, and consumers equilibrium will also change from E1 to E2, E2 to E3, and so on. So this is the price effect. If we join the tangency points, changes in consumer equilibrium at point E1, E2, and E3, this line is known as PCC, price consumption curve. Price consumption curve shows that path through which consumers equilibrium changes due to change in price. Next is income effect. Any change in consumers equilibrium due to change in consumers income is known as income effect. There are 5 different cases of income effect. Number 1, when both X and Y are normal, both X and Y are equally preferable. Number 2, X normal, Y inferior. Number 3, X inferior, Y normal. Number 4, X neutral. Number 5, Y neutral. Now consider the following diagrams to explain these concepts. Number 1 is both X and Y normal goods. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इनकम इफेक्ट कि इनकम इफेक्ट क्या है। दैट लाइज एट पॉइंट E1 वेयर IC1 इज टेंजेंट टू बजट लाइन AB। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो X1 और XY परचेज कर रहा है। सपोज कंज्यूमर्स इनकम राइजेज इंक्रीजेज ओवर टाइम, देन इट विल कॉज टू शिफ्ट द बजट लाइन फ्रॉम AB टू A prime B prime, and due to this shift consumers equilibrium also shifts from E1 to E2 where consumer is purchasing OX2 and OY1 and so on from E1, E2, E3. If we join the points E1, E2, E3, we can get a line that is known as ICC, income consumption curve. Income consumption curve shows that path through which consumers equilibrium changes due to change in consumers income. नंबर नेक्स्ट इज एक्स नॉर्मल वाई इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनकी इनकम के बढ़ने से हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, और इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं कि जिनकी हम डिमांड पहले से कम कर देती हैं। एनी गुड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ विच इज़ नेगेटिव दैट इज़ नोन एज इन्फीरियर एंड वाइस वर्सा। तो इस डायग्राम में देखें कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पे है, जहाँ पे IC1 और AB बजट लाइन टेंजेंट है। अब अगर सपोज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन AB से A प्राइम B प्राइम हो जाती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो E1 से E2 पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे IC2 A प्राइम B प्राइम को टेंजेंट कर रहा है। एंड इट इज़ क्लियर, वेरी क्लियर दैट एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज परचेजिंग OX2 more of superior good and reducing the quantities of Y from Y1 to Y2 which is the inferior good. Similar happens in case of Y normal goods, and ICC will bend towards the Y axis indicating that Y is superior good and X is inferior goods. अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है तो वो Y को ज़्यादा परचेज करता है और X को कम कर देता है। इनकम इलास्टिसिटी जो है वो Y की पॉजिटिव और X की नेगेटिव। तो ये है अगर X जो है वो इन्फीरियर हो और Y नॉर्मल गुड हो तो उस सूरत में ICC Y एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। नंबर नेक्स्ट है एक्स न्यूट्रल। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एनी गुड इज़ ज़ीरो देन इट इज़ नोन एज न्यूट्रल गुड। कि आमदनी के बढ़ने से किसी चीज़ के डिमांड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, पहले भी हम उतनी ख़रीद रहे थे, अभी उतनी खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट न्यूट्रल गुड।
तो इस सूरत में देखिए कि हमारा ICC जो है वो वाई एक्सिस के वर्टिकल हो जाता है, और इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास जो है वो वाई न्यूट्रल हो तो ICC जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये है जी कंप्लीट जो इनकम इफ़ेक्ट का है। अब इन तीनों इफ़ेक्ट्स को जो हमारे पास बोथ नॉर्मल, एक्स नॉर्मल वाई इन्फीरियर, एक्स इन्फीरियर वाई नॉर्मल, एक्स न्यूट्रल वाई न्यूट्रल, इन सब को एक ही डायग्राम में शो करें तो ये देखिए ये जो सेंट्रल में लाइन जा रही है ICC1, तो ये शो कर रही है कि एक्स एंड वाई दोनों जो हैं वो बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल गुड्स, बोथ आर नॉर्मल गुड्स। और ICC2 जो है वो वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, इट मीन्स कि वाई इज नॉर्मल, एक्स इज इन्फीरियर। और ICC3 जो है दैट इंडिकेट्स दैट एक्स इज नॉर्मल गुड एंड वाई इज इन्फीरियर गुड्स। और ICC4 जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो एक्स न्यूट्रल है, और ICC5 शो कर रहा है कि वाई न्यूट्रल। सो ये था हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट दैट इज़ सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक। तो एनी चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में देखें कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम E1 पे है। इनिशियली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट पॉइंट E1 वेयर IC1 is changed to budget line AB. Suppose price of X falls down, but then budget line will become flatter. It will shift from AB to AB prime. Due to this, consumers equilibrium will also shift from E1 to E2, where IC2 is changed to new budget line AB prime. Now, if we want to find out the substitution effect, so we have to draw a line parallel to AB prime. यानी इनकम के अंदर जो प्राइस ऑफ एक्स के फॉल होने से इंक्रीज़ हुआ है, रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई है, उसको हम कंपनसेट करेंगे अंडर द कंपनसेशन क्राइटेरिया। तो उस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हुए हम न्यू बजट लाइन बनाएंगे जो AB प्राइम के नीचे पैरेलल लाइन है और IC1 को E2 पर टेंजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास न्यू बजट लाइन है जिससे हमने इनकम इफ़ेक्ट, जो इनकम रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई थी, उसको हमने उस इफ़ेक्ट को जो है वो ख़त्म किया। तो अब देखें कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो एक ही IC के ऊपर लाई करता है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सेम IC, बिकॉज इनकम रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो ये देखें यहाँ पर देखें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है ये जो देखें हम पहले वो एक ही बजट लाइन, एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर E1 से लेकर E2 तक, दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे वो Y को कम करके X को ज़्यादा कर रहा है, तो दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई आपको फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत हो तो यू मे कॉन्टैक्ट मी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।